राज्यसभा रे वंदे मातरं स्वतंत्र आलोचना बेले निज मत रखिछंती बीजेडी राज्यसभा सांसद तथा बीजेडी संसदीय दल मुख्य सचेतक मानस रंजन मंगराज। गतकाली ठारू राज्यसभा रे वंदे मातरं संगीतर 150तम वार्षिकी अवसर में आलोचना आरंभ होईछि। सांसद मानस मंगराज निज वक्तव्य में वंदे मातरं सुदूर प्रसारी प्रभाव संपर्क में आलोकपात करथिले। ओडिशा किभଳି वंदे मातरं आह्वान को ग्रहण करिथिला से संपर्क में सूचना देथिले। यह अवसर में 1817 पाइक विद्रोह, बक्सी जगबंधु, वीर सुरेन्द्र साई ठूर नहीं गोपबंधु दास मधुसूदन दास का देशप्रेम प्रसंग उत्थापन करथिले। सेपरि वंदे मातरं प्रसंग में भी आलोचना करिसेंती बीजेडी राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया। जय जगन्नाथ कही से वक्तव्य आरंभ करने सह राष्ट्रीय चेतना, सभ्यतार स्पंदन, मातृभूमि प्रति अतुट समर्पण को स्मरण करथिले। बंकिम चंद्र वंदे मातरं लेखि भारतीय राष्ट्रवादर ज्योति प्रज्वलित करथिले बोली कहिथिले सांसद। श्री मानस रंजन मंगराज, प्लीज 3 minutes. Honorable Chairman, sir, Please. there are moments Not in going a on nation's record. life Please. when we must speak not softly but with clarity and courage. Today is such moment. I rise to speak on Vande Mataram with the conviction that this house must give our motherland the honor long overdue. Sir, our civilization wisdom says, Ma bhumihi putro ham pruthiyaha. The earth is my mother and I am her son. Vande Mataram is the most powerful articulation of that sacred truth. Sir, when Bankim Chandra Chattopadhyay wrote these immortal words, he did not merely write a poem, he awakened a nation. As Mahatma Gandhi said, the freedom struggle and Vande Mataram were inseparable. I did not provoke hatred, it summoned sacrifice and courage. Sir, Odisha responded to that call long before the nation realized its power. From the Paika Vidroh of 1817 under Bakshi Jagabandhu to Veer Surendra Sai in Sambalpur to the patriotic work of Gopabandhu Das and Madhusudan Das. The spirit of Vande Mataram lived here even before the words we penned. Sir, when Tagore first sang it at the 1896 in Calcutta Congress, the entire assembly rose in tears. From Bengal to Odisha, from Puri to Cuttack, one line became the pulse of resistance, Vande Mataram. On 24 January 1950, Dr. Rajendra Prasad declared that Vande Mataram should enjoy equal honor with the national anthem. Yet, after 75 years, it still lacks constitutional recognition. Sir, this song becomes to every citizen, every farmer, every soldier, every child of India. Just as Odiyas say, Jai Jagannath, to express civilization identity, Vande Mataram is a unifying, inclusive anthem. Sir, a nation that forgets the songs that liberated it risks forgetting the sacrifices that built it. Therefore, I submit with full conviction, Vande Mataram must receive constitutional recognition, be taught with respect in schools, and reclaim its rightful place as India's spiritual anthem. Vande Mataram, sir, Vande Mataram. Thank you. धन्यवाद। माननीय सुभाषिष खुंटिया, 3 minutes. जय जगन्नाथ। माननीय उपसभापति महोदय, आज जब राष्ट्र वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, हम केवल एक गीत को स्मरण नहीं कर रहे, हम एक राष्ट्रीय चेतना, एक सभ्यतागत स्पंदन और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण को नमन कर रहे हैं। 1875 में जब विक्रम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखे, तब वे केवल कविता नहीं रच रहे थे, वे भारतीय राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित कर रहे थे। औपनिवेशिक दमन के बीच यह गीत एक आह्वान, एक जागरण और एक विद्रोही स्वर बनकर उठा। इसके मंत्र सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातृभूमि के समृद्धि, हरियाली और शांति को दर्शाता है और सस्य श्यामलाम मातरम भारत की उर्वरता और श्रमशील
जनता की आत्मा को व्यक्त करता है। महोदय, वंदे मातरम हमें जोड़ता है, विभाजित नहीं करता है। माता अपनी सभी बच्चे को समान प्रेम से देखती है, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर। इसी कारण स्वाधीनता संग्राम में सभी समुदाय ने इसे अपनी आवाज बनाया। उड़ीसा का प्रतिनिधि होने के नाते मैं गर्व से उल्लेख करता हूं कि 1882 और 84 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उड़ीसा के जाजपुर में डिप्टी कलेक्टर रहे। इसी समय वंदे मातरम का संदेश देश में प्रसारित हो रहा था। उसकी उड़ीसा की संस्कृति, श्री जगन्नाथ की परंपरा और लोक जीवन ने उन्हें जीवन व लेखन को प्रभावित किया, जिसे हमारे प्रदेश और इस अमर गीत को बीच एक स्वाभाविक सांस्कृतिक संबंध जुड़ते हैं। उड़ीसा ने वंदे मातरम के स्वर नहीं, अपने संघर्ष का संबल बनाया सर। उत्कल सम्मिलनी प्रजामंडल आंदोलन और पुरी के लवण सत्याग्रह में उत्कल गौरव मधुसूदन दास से उत्कलमणि गोपबंधु दास तक, पंडित नीलकंठ दास से वीर बालक बाजी राउत तक हर ओडिया ने इसे अपनी संकल्प की धड़कन बनाया। आज 150 वर्ष बाद यह गीत हमें एक दायित्व सौंपाता है कि हम इस राष्ट्र भावना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। जुबा जाने के कि वंदे मातरम केवल धुन नहीं बल्कि त्याग, साहस और राष्ट्र कर्तव्य का प्रतीक है। स्वच्छता बनाए रखने से सीमाओं की रक्षा तक, उत्पादन बढ़ाने से उत्तरदायी उपभोक्ता बनने तक, पारदर्शी शासन की मांग से जिम्मेदार नागरिक बनने तक, हर आचरण में मातृभूमि सर्वोपरि। अंत में उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को नमन जिन्होंने इस गीत को संघर्ष की धड़कन बनाए। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, वंदे मातरम।